Hello, my dear students. Once again, this is Dr. Monica Patel, and welcome to my YouTube channel that is White Coat Academy. Now, in the series of respiration, today's topic is regulation of respiration. Before going in a detail, we have to learn or we have to discuss the basic fundamentals related to the regulations. So, various activities of our body or human body is regulated by the central nervous system, right? हमारे बॉडी का बिग बॉस कौन है? वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मदद से ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी इज गोइंग टू बी regulated with the respiration, with the digestion, with the metabolism, right? So there is the role of central nervous system in the regulation of respiration as well. So हम आज के लेक्चर में रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? Let's start. Let's learn together. First, introduction. तो सबसे पहले हम जानेंगे respiration क्या है. As we already discussed in the last lectures. Now, what is the respiration? Respiration occur in two phases, mainly inspiration and expiration. During inspiration, thoracic cage enlarge, lung expand so that air enters into the lung easily. Right? The first stage is the inspiration and second one is the expiration, in which the thoracic cage and lungs are decreased in size and so that the air leaves the lungs easily, right? तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है? टू फेज में होगा. फर्स्ट इज द इंस्पायरेशन जिसमें लंग बड़े होंगे, एक्सपांड होगा, थोरेसिक केज एक्सपांड होगा, जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाएगी. और ऑन दी अदर हैंड एक्सपायरेशन क्या है? एक्सपायरेशन भी अगेन सेम प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? थोरेसिक केज और लंग डिक्रीज इन साइज, कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसकी मदद से क्या होगा? अंदर जो एयर है वो फोर्स आउटसाइड, और वी कैन से एक्सपल्ड होगी. तो दिस इज हाउ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी टेकन. ये तो बात हो गई रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस क्या है. अब ये रेगुलेट कैसे होती है, उसका जो रेट है, उसका जो रिदम है, स्पीड है, वो कैसे मेंटेन होता है हमारे बॉडी में, वो हमको लर्न करना है, राइट? अपने रूटीन लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभार हमारा रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है, कभी कभार जो एकदम स्लो हो जाता है, कभी कभी हम एकदम डीप में रेस्पिरेशन करते हैं और कभी कभी एकदम सैलो रेस्पिरेशन करते हैं. तो ये सारा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मदद से रेगुलेट होता है. बट हाउ? लेट्स लर्न टुगेदर. Now regulation. Normally quite regular breathing occurs because of the two regulatory mechanism. जो normally respiration होता है वो two mechanism की मदद से होता है. First one is the nervous or a neural mechanism and second one is the chemical mechanism. Right? पहला क्या होगा? Nervous or a neural mechanism and second one is the chemical mechanism. So in today's lecture, we gonna learn regarding only and only regarding the neural mechanism or the nervous mechanism. Right? मैंने पहले ही बोला कि हमारे बॉडी का बिग बॉस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? मैसेजेस रिसीव करेगा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए और उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर देगा किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और उसके अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन का जो रेट है, रिदम है, फोर्स है, वो चेंज होगा. चलो, फर्स्ट नर्वस सिस्टम. Nervous mechanism that regulates the respiration includes first one is the respiratory centers, second one is the afferent nerves. A माने कि afferent nerves and third one is the efferent nerves, right? तो nervous mechanism जो है वो respiration regulate करता है तीन चीजों की मदद से. First one is the respiratory centers, second one is the afferent nerves and third one is the efferent nerves. चलो वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सेंटर्स. Respiratory centers are a group of neurons which control rate, rhythm and the force of respiration. Right? Respiratory center क्या है? वो न्यूरॉन है जो क्या कंट्रोल करेंगे? रेट, रिदम एंड फोर्स ऑफ द रेस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. अभी ये न्यूरॉन कहाँ पे है, ये सेंटर कहाँ पे है ब्रेन स्टीम में, उसकी मदद से रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप. चलो, इस टाइप का ब्रेन होता है, राइट? दिस इज द सेरेब्रम, दिस इज द सेरेबेलम एंड दिस, यहाँ पे क्या होगा?
मिड ब्रेन होगा, पॉन्स होगा एंड मेड्यूला होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन कहाँ पे सिचुएटेड है ब्रेन स्टिम में, इसको हम ब्रेन स्टिम बोलते हैं। और कंटिन्यू एज अ स्पाइनल कोड, यहाँ पे कंटिन्यू एज अ स्पाइनल कोड। समझ में आ रहा है क्या है? ये ब्रेन है, अपर पार्ट सेरेब्रम, इसको सेरेबेलम बोलते हैं। ये जो है वो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, इसको हम बोलेंगे ब्रेन स्टेम विच इज कंटिन्यूड बिलो डिसेंड एज द स्पाइनल कोड। तो अभी यहाँ पे किस लोकेशन पे वो सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द मेड्यूलरी सेंटर्स एंड सेकंड वन इज द पोंटाइन सेंटर्स। चलो, medullary centers contain the dorsal respiratory group of the neurons and ventral respiratory group of neurons. मीनवाइल आप साथ साथ में अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स पढ़ रहे हैं कि जिसमें वो न्यूरॉन है कि जो रेट, रिदम और फोर्स रेस्पिरेशन का कंट्रोल करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन दे आर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप। ग्रुप ए दैट वन इज द मेड्यूलरी सेंटर, उसमें अगेन दो, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ग्रुप बी इज द पोंटाइन सेंटर, माने कि जो पोन्स में सिचुएटेड होगी उसको हम पोंटाइन बोलेंगे, जो मेड्यूला में सिचुएटेड होगी उसको हम बोलेंगे मेड्यूलरी। चलो, इसके अंदर आएगा एप्न्यूस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर? नाम आपको परफेक्टली याद रखने हैं। टोटल 4 सेंटर हुए, मेड्यूला में 2 हुए और पॉन्स में 2 हुए। मेड्यूला में जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल, पॉन्स में जो है वो है एप्न्यूस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक। चलो हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ रेस्पिरेटरी सेंटर्स। मेड्यूलरी सेंटर्स कंसिस्ट, अब यहाँ पे देखो ये जो एरिया है वो है मेड्यूला, राइट। डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर हमने अभी पढ़ा, तो दिस टू आर दी डोर्सल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स एंड सेकंड इज द वेंट्रल रेस्पिरेटरी, जो ये ग्रीन कलर का है वो क्या है? वेंट्रल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। ये हमने अभी पढ़ा, वो ये ब्रेन स्टिम है जिसमें पॉन्स एंड मेड्यूला, जिसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स हो गए। तो जो मेड्यूला में है वो दो, डॉर्सल एंड वेंट्रल। सेकंड हम स्टडी करेंगे पोंटाइन, माने कि जो पॉन्स में है वो, तो ये वाला अपर एरिया जो है उसको बोलेंगे पॉन्स। चलो, एप्न्यूस्टिक माने ये ब्लू कलर के जो है उसको बोलेंगे एप्न्यूस्टिक सेंटर एंड फोर्थ वन इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सबसे अपर पार्ट में जो होगा वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सिंपल रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, ब्रेन स्टिम के अंदर है, पॉन्स में 2 है, मेड्यूला में 2 है, दैट्स इट। क्लियर? चलो, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे मेड्यूलरी न्यूरॉन। मेड्यूलरी में 2, फर्स्ट वन इज द डॉर्सल एंड सेकंड वन इज द वेंट्रल, राइट। हम ये मेड्यूला के जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उसमें से पहले हम स्टडी करेंगे डॉर्सल। चलो, situated कहाँ पे है? In the nucleus of Tractus solitarius, the upper part of the medulla oblongata। चलो, medulla oblongata के upper part में हमको dorsal group of the neuron मिलेंगे। Collectively called the inspiratory centers। इसको क्या बोलेंगे? Inspiratory centers। These all neurons are inspiratory neuron and generate the inspiratory ramp। माने कि जो इंस्पिरेशन का रिदम है, रैंप है, वो कौन मेंटेन करता है? दिस डोर्सल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन। तो आपको माइंड में लाइट होनी चाहिए, जब भी डोर्सल का नाम आएगा दैट मीन्स इंस्पायरेशन। डोर्सल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, राइट। चलो, फंक्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। तो ये हमने फर्स्ट स्टडी किया मेड्यूला का, ये जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन है वो क्या है? टेक्टस सॉलिटेरियस न्यूक्लियस के अंदर आता है। कलेक्टिवली इंस्पायरेटरी सेंटर बोलते हैं, इंस्पायरेशन रैम्प के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बेसिक रिदम जो है रेस्पिरेशन का वो मेंटेन करता है। चलो, अगेन मेडुलरी न्यूरॉन में सेकंड क्या है? वेंट्रल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। तो ये ग्रीन वाले हम स्टडी कर रहे हैं, वेंट्रल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सिचुएशन क्या है? इन द न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस एंड रिट्रो एम्बिग्यूअस। आपको सिर्फ न्यूक्लियस के नाम याद रखने हैं, उसके सिचुएशन क्या है, कौन से न्यूक्लियस में हमको ये न्यूरॉन मिलेंगे? एम्बिग्यूअस एंड रिट्रो एम्बिग्यूअस न्यूक्लियस में। कलेक्टिवली कॉल्ड द एक्साइटेटरी सेंटर्स, राइट। याद कीजिए, डोर्सल माने मैंने क्या बोला? इंस्पायरेशन।
अभी हम वेंट्रल का पढ़ रहे हैं, हैज बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स। इसके अंदर दोनों हो गए, इंस्पायरेटरी के भी हो गए और एक्सपायरेटरी के भी। इंस्पिरेशन के जो है वो सेंट्रल में न्यूरॉन हो गए, एस्पायरेटरी के जो है वो क्लाउडल और रोस्ट्रल एरिया माने कि पेरिफेरल एरिया में। तो दिस ventral group of the neuron contain both inspiration and expiration neurons. Now inactive during the quick breathing and active during the forced breathing. जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें फोर्सफुल रेस्पिरेशन करना हो तब भी यूज होगा ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। बाकी नॉर्मल कंडीशन में डॉर्सल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स की मदद से नॉर्मल रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन मेंटेन होगा। During forced respiration, these neurons stimulate both inspiratory and expiratory muscles, right? क्योंकि उसके पास तो दोनों टाइप के न्यूरॉन्स है तो वो इंस्पायरेशन एज वेल एज एस्पायरेशन मसल को एक्टिवेट करेगा। क्लियर? तो ये हो गया मेड्यूलरी न्यूरॉन्स। हमने पहले डोर्सल को स्टडी किया कि जो टेक्टस के अंदर सॉलिटरीज के अंदर आया हुआ है, इंस्पिरेशन का रैंक जो है वो क्रिएट करता है और बेसिक क्या है, रिदम जो रेस्पिरेशन का है वो मेंटेन करता है। उसके बाद हमने वेंट्रल पढ़ा कि जो न्यूक्लियस एम्बिगियस और रिट्रोएम्बिगियस में आता है, एक्साइटेटरी न्यूक्लियस सेंटर बोलते हैं, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सफुल रेस्पिरेशन, राइट? चलो, सेकेंड वन इज द पोंटाइन सेंटर्स। पोंटाइन सेंटर्स माने कि प्रेजेंट इनटू दी पॉन्स। अभी हम चले जाते हैं अपर पार्ट में, ये जो है वो, राइट? इसमें फर्स्ट है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये जो ब्लू कलर के है उसको हम बोलेंगे एपन्यूस्टिक सेंटर। कहाँ पे है? रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ लोअर पॉन्स। देखो ये पॉन्स का लोअर पार्ट में हमको ये एपन्यूस्टिक सेंटर दिखने को मिलेंगे। It is responsible for the depth of inspiration by acting directly on dorsal group of the neurons. Apneustic का फंक्शन क्या है? वो डोर्सल पे इफेक्ट करेगा। ये देखिए ब्लैक एरो किस पे? डोर्सल पे। नाउ डोर्सल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इंस्पायरेशन. So apneustic center affect the dorsal group and hence responsible for the deep inspiration. जब भी हमको गहरी सांस लेनी हो तब भी हमको कौन से सेंटर लगेंगे? एपन्यूस्टिक सेंटर, राइट? तो फॉर द डीप रेस्पिरेशन एपन्यूस्टिक सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल। चलो, सेकंड वन इज द न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ये जो सबसे ऊपर वाले पॉन्स के एरिया में है उसको हम बोलेंगे न्यूमोटेक्सिक सेंटर। So into the dorsolateral part of the reticular formation in upper pons. आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि upper pons के जो एरिया है pons में upper part है वहां पे हमको दिखने को मिलेगा। Formed by the neuron of parabrachial and suprabrachial nuclei. चलो इसमें क्या होगा? parabrachial and suprabrachial. उसको वेंट्रल पैराब्रेकियल भी बोलते हैं और कॉलिकर फ्यूज न्यूक्लियस भी बोलते हैं। कभी कभार ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, कॉलिकर फ्यूज न्यूक्लियस माने कि वेंट्रल पैराब्रेकियल न्यूक्लियस, और आप ये भी लिख सकते हो न्यूमोटेक्सिक सेंटर्स, राइट? चलो, इट इज कंट्रोल द मेड्यूलरी न्यूरॉन। अभी ये पॉन्स का सबसे ऊपर आया हुआ न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है बेसिकली क्या करता है? मेड्यूला के जो दोनों हमने पढ़े डोर्सल और वेंट्रल, ये दोनों सेंटर को कौन रेगुलेट करता है? न्यूमोटेक्सिक। यहाँ पे बिग बॉस कौन है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। अभी कैसे कंट्रोल करता है? तो फर्स्ट इट एक्ट्स ऑन द एपन्यूस्टिक सेंटर। पहले वो एपन्यूस्टिक सेंटर पर एक्ट करेगा। Now it inhibits the apneustic center so that dorsal group of the neurons are inhibited. वो बेसिकली ये एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट कर देगा। अभी एपन्यूस्टिक क्या करता था? डोर्सल के ऊपर इफेक्ट लाता था, तो ऑटोमेटिकली डोर्सल भी क्या हुआ? इनहिबिट हो गया, राइट? समझ में आ रहा है? ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो पहले एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करेंगे। नाउ एपन्यूस्टिक क्या करता था? डोर्सल ग्रुप को स्टिम्युलेट करता था, राइट, फॉर द डीप इंस्पिरेशन। अभी ये इनहिबिट हो गया तो डोर्सल ग्रुप भी इनहिबिट हो गया, और उसकी मदद से क्या होगा? इंस्पायरेशन स्टॉप हो जाएगा एंड एक्सपायरेशन स्टार्ट होगा। तो बेसिकली इट इज अ स्विच बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। कौन? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। क्लियर? तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है वो डोर्सल ग्रुप को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा विद द हेल्प ऑफ एपन्यूस्टिक सेंटर।
और जैसे डोर्सल ग्रुप इनहिबिट हुआ माने कि इंस्पायरेशन स्टॉप हुआ और एक्सपायरेशन स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों? हमने अभी पढ़ा ना कि डोर्सल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पायरेशन। अभी आप डोर्सल ग्रुप को इनहिबिट कर दोगे तो क्या होगा? इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा और एक्सपायरेशन स्टार्ट होगा। तो दिस इज हाउ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्ले अ रोल एज अ स्विच बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। चलो अभी हमने ये पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सेंटर। हमने क्या पढ़ा कि रेगुलेशन में फर्स्ट आता है न्यूरल, राइट, सीएनएस के थ्रू जो होता है वो, उसमें थ्री थे। फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हमने पढ़ लिए कि भैया पॉन्स में दो होते हैं, मेड्यूला में दो होते हैं। पॉन्स वाले जो है सबसे ऊपर न्यूमोटैक्सिक, नीचे वाले थे वो एपन्यूस्टिक, राइट। ऐसे हमने पढ़ा ये ऊपर का पार्ट जो है वो पॉन्स, इसमें दो थे न्यूमोटैक्सिक देन एपन्यूस्टिक। अभी मेड्यूला में भी दो थे, डोर्सल एंड वेंट्रल। तो ये जो ग्रुप ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर है वो लोकेशन के साथ हमने पढ़ लिए, राइट। नाउ द इफरेंट पाथवे। अभी जब भी ई से स्टार्ट होगा और सेकंड आएगा एफरेंट पाथवे। तो इफरेंट पाथवे माने कि रेस्पिरेटरी सेंटर में से ऑर्डर लेके पर्टिकुलर ऑर्गन तक जो नर्व फाइबर्स जाते हैं उसको बोलते हैं इफरेंट पाथवे। और एफरंट किसको बोलते हैं? बॉडी में से पेरिफेरल एरिया में से और बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस हुए तो बॉडी में से जो मैसेज लेके सीएनएस तक जाएगा उसको बोलते हैं एफरंट पाथवे। क्लियर? सीएनएस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन और सिस्टम में जो मैसेज लेके फाइबर जाते हैं उसको हम इफरेंट फाइबर्स बोलते हैं, पाथवे बोलते हैं। और जो बॉडी में चेंजेस हुए वो सीएनएस को जाके के बताता है कि भैया ऐसा हुआ, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, राइट। जो मैसेज लेके जाता है सीएनएस तक वो हो गए एफरेंट पाथवे। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हमने अभी पढ़े उसमें से नर्व फाइबर लीव द ब्रेन स्टेम। ये देखो ये है ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये पोन्स में, ये मेड्यूला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसमें से नर्व फाइबर फाइनली निकल के नीचे जाएंगे कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कोड। ऐसे जो स्पाइनल कोड होती है आपने देखी होगी, तो ये उसका लेटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कोड होता है, वहां से ये नर्व फाइबर निकलेंगे। कितने सेट में हो गए? 2 सेट ऑफ नर्व फाइबर। फर्स्ट वन इज द फ्रेनिक नर्व, C3 टू C5 आपको क्या मिलेगा? फ्रेनिक नर्व फाइबर्स। देखो फ्रेनिक नर्व फाइबर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये देख रहे हो ये क्या है? डायफ्राम। ये जो येलो वाला आप दिख रहे हो वो फ्रेनिक नर्व के फाइबर्स है जो फाइनली डायफ्राम को सप्लाई करते हैं। नाउ इंटरकोस्टल नर्व फाइबर्स, ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो वो है इंटरकोस्टल नर्व फाइबर्स। ये आप येलो कलर का देख पा रहे होगे वो क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। तो वो किसको सप्लाई करेगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। समझ में आ गई बात? रेस्पिरेटरी सेंटर में से नर्व फाइबर स्पाइनल कोड के थ्रू फाइनली 2 सेट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्रेनिक नर्व फाइबर्स के जो डायफ्राम को सप्लाई करेगा, एंड सेकेंड वन इज द इंटरकोस्टल नर्व फाइबर्स जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल माने कि जो रीप के बीच में जो मसल आते हैं उसको सप्लाई करेगा, राइट। अभी ये क्या लेके आए? एफरेंट नर्व फाइबर्स ऑर्डर लेके आए हैं कि आपको कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना रिलैक्स होना है, राइट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नाउ सेकेंड वन इज द एफरेंट पाथवे। चलो एफरन पाथवे मैंने पहले से ही बोला कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो मैसेजेस ब्रेन के अंदर जाएंगे, सीएनएस के अंदर जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एफरन पाथवे। सो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड द बैरोरिसेप्टर वाया ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। चलो ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व के थ्रू ये कीमोरिसेप्टर्स जो एक्टिवेट हुए वो फाइनली सीएनएस को मैसेज भेजवाते हैं, पहुंचाते हैं। नाउ सेकेंड क्या होगा? स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ लंग वाया वेगस नर्व। तो यहाँ पे भी आपको दो नाम याद रखने हैं, ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। तो बेसिकली फाइनली अभी क्या हुआ? बाय रिसीविंग एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम दिस रिसेप्टर, हमारे बॉडी में अलग अलग एरिया में रिसेप्टर्स होते हैं कि जो स्टिम्युलेट होते हैं और फाइनली इम्पल्स, फाइनली मैसेज जो है एफरेंट नर्व्स के थ्रू सीएनएस तक पहुंच जाते हैं। नाउ सीएनएस में गया तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स मॉड्यूलेट द मूवमेंट ऑफ
thoracic cage and lungs through the efferent nerve fibers. क्लियर? चलो यहाँ पे डिटेल में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अओर्टा है, यहाँ पे रिसेप्टर हो गया जिसमें PO2 माने कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, PO2 माने कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया, तभी ये स्टिम्युलेट होगा. और फाइनली किसको, ये जो ब्रेन स्टिम में हमने रेस्पिरेटरी सेंटर दिखे ना, उसको जाके स्टिम्युलेट करेगा. अभी लंग्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर आएंगे वो भी फाइनली ब्रेन स्टिम में आए हुए रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, राइट. और फाइनली क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होंगे और इफ्रंट नर्व के थ्रू डायाफ्राम एंड जो इंटरकोस्टल मसल है उसको सप्लाई करेंगे. So this is how brain receive the messages through the afferent nerve and brain send the order to the particular organ by the efferent pathway, right? देखो यहाँ पे ये ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन स्टिम, ये जो है वो ब्रेन स्टिम, ये जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, राइट. तो मान लो कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस हुए, फॉर एग्जाम्पल पेन है और इमोशनल कंडीशन है. फर्स्ट वन इज पेन और इमोशनल कंडीशन. सेकेंड वन इज ब्लड में O2 डिक्रीज हुआ, CO2 इंक्रीज हुआ, H+ इंक्रीज हुआ. थर्ड वन इज रिसेप्टर इनटू द मसल एंड जॉइंट. Fourth one is irritant receptors in a lung and fifth one is stretch receptor in a lungs. तो ये सारे जो स्टिम्युलेंट है, रिसेप्टर्स है, वो स्टिम्युलेट होंगे. फाइनली मैसेजेस लेके कहाँ पे जाएंगे, ब्रेन स्टिम के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वहां पे. मान लीजिए हमारे स्कूल में, कॉलेज में कोई भी डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं, प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं. तो सेम ये बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस हुए जो कि एबनॉर्मल है, अनयूजुअल वे में है, तो ये सारे इम्पल्सेस जो है, मैसेजेस जो है, हम किसको पहुंचाएंगे, किसको एप्लीकेशन लेके जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये ब्रेन स्टिम में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके पास. अभी ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या करेगा, अगेन अभी 1 मिनट. चलो, ये रेस्पिरेटरी के सेंटर के पास मैसेजेस आ गए. अभी ये क्या करेगा, ये जो नर्व फाइबर है, इफ्रंट नर्व फाइबर, उसकी मदद से डायफ्राम को, इंटरकोस्टल मसल्स को स्टिम्युलेट करेगा और उसको गाइड करेगा कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना रिलैक्स होना है. और उसकी मदद से क्या होगा, रेस्पिरेशन की जो मूवमेंट है, thoracic cage की जो मूवमेंट है वो रेगुलेट होगी. तो दिस इज हाउ द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस. चलो फिर से कंक्लूजन जो है वो हम आपको किन किन के पॉइंट याद रखने हैं वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, चलो आज हमने पढ़ा कि रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन फर्स्ट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वी कैन से द न्यूरल रेगुलेशन. अभी न्यूरल रेगुलेशन में आएंगी तीन चीजें, राइट. फर्स्ट आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी सेंटर्स. फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सेंटर्स. सेकेंड वन इज द इफ्रंट नर्व और द इफ्रंट पाथवे, एंड थर्ड वन इज द एफरंट पाथवे, राइट. अभी एकदम सिंपल टॉपिक है. रेस्पिरेटरी सेंटर में हमने क्या पढ़ा कि भैया ये पॉन्स है, ऊपर का जो है वो पॉन्स और नीचे का जो है मेड्यूला. पॉन्स में सबसे ऊपर न्यूमोटैक्सिक सेंटर आते हैं, उसके नीचे जो है वो एपन्यूस्टिक सेंटर आते हैं, मेड्यूला में यहाँ पे डोर्सल आता है और सबसे नीचे क्या, वेंट्रल आता है. तो बेसिकली न्यूमोटैक्सिक एपन्यूस्टिक को कंट्रोल करता है और ये एपन्यूस्टिक डोर्सल को कंट्रोल करता है. This whole respiratory center, all respiratory centers are responsible for maintaining the rate, rhythm and force of the respiration. तभी तो उसको रेस्पिरेटरी सेंटर बोलेंगे ना, राइट. चलो, अभी आपको याद रखना है एफरंट नर्व, राइट. इफ्रंट नर्व्स अथवा तो इफ्रंट पाथवे माने कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स में से, मान लो कि ये ब्रेन स्टीम है, उसमें से नर्व फाइबर निकल के फाइनली लंग्स के बीच में जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है और यहाँ पे जो मसल्स है उसको सप्लाई करेगी, राइट. एंड एफरंट माने कि हमारे बॉडी में CO2 बढ़ गया, O2 डिक्रीज हो गया, H+ इंक्रीज हो गया, पेन कंडीशन है, स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है लंग का, तो उस कंडीशन में ये सारी बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल एक्टिविटीज
जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में हुई तो फाइनली अभी एफरेंट नर्व्स फाइबर जो है वो फाइनली सीएनएस के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भैया ये डिफिकल्टी है, तो सीएनएस क्या करेगा, एफरन के थ्रू लंग और डायफ्राम के जो मसल्स है, थोरेसिक केज के मसल्स है, उसको सप्लाई करेगा, उसको गाइड करेगा कि आपको कैसे मूवमेंट करनी है। एंड दिस इज हाउ हमारी जो रेस्पिरेशन का रेट है वो रेगुलेट होगा। तो बेसिकली ऐसे होता है, ये जो है वो ब्रेन स्टीम, यहाँ पे आपको 8 जो है वो सेंटर दिखने को मिलेंगे। हमको आज स्टडी करना है ओनली एंड ओनली रिगार्डिंग दी रेस्पिरेशन, राइट। तो ये रेस्पिरेशन, यहाँ पे डायफ्राम होगा, यहाँ पे आप सबको पता है कि इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब के बीच में मसल्स है वो होंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो है रेस्पिरेटरी सेंटर्स, राइट। जब भी हमारे बॉडी में CO2 इंक्रीज हुआ, O2 डिक्रीज हुआ, H+ इंक्रीज हुआ, कोई पेन और वी कैन से दी इमोशनल कंडीशन है, राइट, और ये जो लंग्स के ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये सारे पेरिफेरल रिसेप्टर एक्टिवेट होके फाइनली मैसेज लेके कहाँ पे जाएंगे। आपको एक ही साइकिल याद रखनी है कि बॉडी में जैसे भी चेंजेस हुए वो चेंजेस फाइनली मैसेजेस लेके कौन जाएगा, एफरंट नर्व फाइबर कहाँ पे जाएगा, ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वहां पे। क्लियर। हमारे स्कूल में कुछ भी होता है, प्रॉब्लम आती है तो हम प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं, ऐसे ये भी सीएनएस में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके पास जाएगा। अभी रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, वापस से ऑर्डर तो उनको देना है, तो किसकी मदद से, वापस से इफ्रंट नर्व फाइबर्स की मदद से, डायाफ्राम, इफ्रंट की मदद से ये डायाफ्राम और ये जो इंटरकोस्टल मसल है उसको मैसेजेस भिजवाएगी कि भाई आपको रिलैक्सेशन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, और ऐसे ही इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, उसका रेट क्या रखना है, उसका रिदम कैसा होगा, उसका फोर्स क्या होगा, वो सारी चीजें रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू, सीएनएस के थ्रू मैनेज होगी। And this is how the neural regulation of the respiration is going to be taken place in our body, right? बेसिकली हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर है वो सीएनएस को मैसेज देगी और सीएनएस उसके आंसर में क्या करेगी, ऑर्डर देगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑर्डर देगी कि भाई आपको इतने फोर्स में, इतनी स्पीड में, इतनी डेप्थ में रेस्पिरेशन करना है। एंड दिस इज हाउ वी ऑल सर्वाइव with the help of normal regulation of the respiration. Hope you like this video, and if you find this video helpful, please like, share and subscribe my YouTube channel, that is White Coat Academy. Now into the second session of the regulation of respiration, we are going to learn regarding the chemical regulation, right? Regulation दो तरीके से होता है, फर्स्ट वन इज द न्यूरल एंड सेकेंड वन इज द केमिकल। आज के लेक्चर में हमने न्यूरल कंप्लीट किया, जो सीएनएस की मदद से न्यूरल था वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द केमिकल रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। थैंक यू सो मच।